Now let's move on to the questions from the chapter Biomolecules. Question number 1 says, which of the following pair gives positive tolerance test? The options are A. Glucose and sucrose, B. Glucose and fructose, C. Hexanal and acetophenone, D. Fructose and sucrose. Let's see how we solve this question. We know that for positive tolerance test, the sugar must be reducing. So that we know that whenever in sugar there is a free aldehydic or ketonic group, whenever in sugar there is a free aldehydic or ketonic group, it can be oxidized to carboxylic acid, so it will react as a reducing sugar. Okay. So we need to check all the 4 options to solve this question. While checking question number 1 for option number 1, we have glucose and sucrose. We know that in sucrose is a polymer of 2 molecules of glucose, so it does not contain a free aldehydic group. It does not contain a free aldehydic group, so it will not act as a reducing sugar, so option A is eliminated. Similarly, we will check option number B. In option number B, we have 2 monosaccharides, glucose and fructose, both of which contain free aldehydic and carbonyl compound respectively. In glucose, we have a free aldehydic group, and in fructose, we have free carbonyl group. So both of these sugar can act as reducing sugar, so our option would be option number B. When we check option number C and D, we observe that in option number D we have disaccharide sucrose, so it will not act as reducing sugar, and in option number C we have hexanal and acetophenone, out of which we know that when we draw the structure of hexanal, it does contain aldehydic group, free aldehydic group. It can show tolerance test, but acetophenone cannot show tolerance test as ketonic group cannot be oxidized to further carboxylic group. Okay, so the answer is B. इस क्वेश्चन में हमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है. एक तो हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें स्ट्रक्चर के बेसिक पॉइंट्स तो पता होने ही चाहिए. और सेकंड चीज़ इसमें यह है कि हमें पता होना चाहिए टॉलरेंस टेस्ट क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट क्या है. तो हमें पता है कि एक sugar can act as a reducing sugar only if it has free aldehydic or carbonyl group. This point is again very important. Right. So that was question number 1. Now let's move on to question number 2. The 2 forms of D-glucopyranose are called A. enantiomers, B. anomers, C. epimers, or D. diastereomers. Let's see the solution for this question. We know that there are 2 forms of D-glucopyranose, alpha form and beta form, and we know that both alpha form and beta form differs in configuration at C1. The relative position of hydroxyl is different for both of the D-glucopyranose structures. Alpha form has a hydroxyl group to the right of the carbon 1, and beta form has to the left of the carbon. Okay. So both of these forms are anomers. Okay, because anomers में जिस कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप होता है, जब हम रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर उसमें OH का कॉन्फ़िगरेशन अलग हो तो हम उस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, राइट? सो या दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2. Moving on to question number 3. The correct statement about the given disaccharide is A. Ring A is pyranose with alpha glycosidic linkage. B. Ring A is furanose with alpha glycosidic linkage. C. Ring B is furanose with alpha glycosidic linkage. And option D. Ring B is pyranose with beta glycosidic linkage. तो हमें एक कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक डाइसैकेराइड का, और हमें बताना है कि
एक तो टाइप ऑफ लिंकेज क्या है और पायरेनोज है या फ्यूरेनोज है एंड विच रिंग द रिस्पेक्टिव रिंग, राइट? Right. सो लेट्स सी द सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन. इट लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू मी. हमने अभी भी पढ़ा था कि जो 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं वो फ्यूरेनोस होती हैं, फ्यूरेनोस रिंग, और जो 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं वो पायरेनोस रिंग होती हैं. ओह, ओके. तो अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें, यहाँ पर दोनों रिंग्स लेबल कर रखी हैं ए और बी, तो इसे हम काफ़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जो ए रिंग है वो पायरेनोस है, राइट, और जो बी रिंग है वो फ्यूरेनोस है. तो अगर हम इससे चेक करें तो हमारे पास अगर एलिमिनेट का, हम इसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं. तो इससे हमें ये क्लियर हो चुका है कि जो रिंग ए है वो पायरेनोस है और रिंग बी फ्यूरेनोस है. अब हमें लिंकेज चेक करनी है. तो हमें पता है कि जो इसमें अगर हम ये कंपाउंड देखें तो इसमें अल्फा पोजीशन, अगर हम इसके रिलेटिव देखेंगे, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, अगर 1 के अगर हम इस डायरेक्शन से व्यू करें, क्योंकि हमें पता है कि मोस्ट ऑक्सीडाइज से लीस्ट ऑक्सीडाइज में देखते हैं हम जब भी देखते हैं इसका स्ट्रक्चर को, हैवर्थ प्रोजेक्शन को. तो अगर हम इसमें देखें तो फर्स्ट पोजीशन पर देखें तो जो OH की रिलेटिव पोजीशन है वो अल्फा है. तो जो ये ईथर लिंकेज बन रही है, जो फर्स्ट रिंग और सेकंड रिंग में ईथर लिंकेज बन रही है वो अल्फा है. तो लिंकेज अल्फा ग्लाइकोसिडिक है. ओके. तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि रिंग ए पायरेनोस है, सही है, विद अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ऑप्शन ए सही है. ऑप्शन बी में देखें तो रिंग ए फ्यूरेनोस है, ये सीधा एलिमिनेट हो गया. रिंग बी पायरेनोस है, जैसा कि डी ऑप्शन में दे रखा है, ये भी एलिमिनेट हो गया. तो हमारे पास सी ऑप्शन बचा, रिंग बी इज फ्यूरेनोस, जो कि सही है. बट अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लिखा हुआ है. अगर हम ऑब्जर्व करें कि जो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो सिर्फ रिंग ए की तरफ है, ना कि रिंग बी की तरफ. अगर रिंग बी की तरफ हम लेबलिंग करें तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो रिलेटिव पोजीशन ऑफ OH, अगर हम इसमें लेबलिंग करना स्टार्ट करें 1, 2, 3, 4 और 5th कार्बन, अगर इधर से देखें, इधर बीच में CH2OH के साथ कंडेंसेशन हुआ है. तो अगर हम देखें यहाँ पर CH2OH है, इसमें OH कोई भी प्रेजेंट नहीं है. और अगर हम रिलेटिव पोजीशन देखते हैं OH और H की, यहाँ पर देखा जाए तो H ऊपर की तरफ है, तो मतलब ये बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है. तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया. Okay, so in this question we dealt with the disaccharide and we had to find out the kind of glycosidic linkage, right? So again, the numbering of the carbon atoms is extremely important. And the direction from which we view the structure is also important. Yeah, right. So that was question number 3. Here comes question number 4. The following carbohydrate is A. Alpha ketohexose, B. An aldohexose, C. An alpha furanose और D. An alpha pyranose. तो हमें एक कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन वैलिड है. तो हम इस स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर चेयर फॉर्म दे रखी है ग्लूकोज के जो साइक्लिक स्ट्रक्चर की, और हमें पता है कि इसमें अगर हम नंबरिंग करें तो हमारे पास कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6. यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 है उस पर OH की रिलेटिव पोजीशन हमें देखनी है. अगर हमें इसमें अल्फा और बीटा कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना है तो हमें इसमें OH की रिलेटिव पोजीशन देखनी है. और हमें पता है कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हमें पता है कि एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, तो ये कीटोहेक्सोज तो बिल्कुल नहीं होगा. तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन बचा है सेकंड, एल्डोहेक्सोज, ये एल्डोहेक्सोज हो सकता है. अभी हमें कंफर्म नहीं है कि ये एल्डोहेक्सोज होगा ही नहीं. अब हम इसके बाद चेक करेंगे अल्फा फ्यूरेनोज. हमें पता है कि जो फ्यूरेनोज रिंग होती है वो 5 मेंबर्ड होती है, तो ये वाला ऑप्शन भी नेग्लेक्ट होगा. और हमारे पास अल्फा पायरेनोज. अब हमें चेक करना है कि ये अल्फा है या बीटा है. तो अगर हम चेक करें तो इसमें OH की रिलेटिव पोजीशन देखें तो जो OH है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर प्रेजेंट है. तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर प्रेजेंट है तो मतलब एक्सियल पोजीशन पर नहीं होगा. तो अगर OH इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा तो वो बीटा स्ट्रक्चर होगा, बीटा पायरेनोज होगा, रिंग है जो हमारे पास. तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी भी नेग्लेक्ट हो गया, तो हमारे पास बी ऑप्शन बचा है. तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा एल्डोहेक्सोज. एल्डो इसलिए क्योंकि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है. और अगर हेक्सोज की बात करें, ये 6 मेंबर्ड रिंग है तो इसे हम हेक्सोज बोलेंगे. ओके, तो चेयर फॉर्म में अगर OH इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है तो वो बीटा पायरेनोज होता है, राइट. और अल्फा पायरेनोज किस केस में होता है? जब फर्स्ट कार्बन के रिलेटिव OH की पोजीशन एक्सियल हो.
मतलब Okay. अगर OH की पोजीशन एक्सियल होगी तो हमारे पास जो कंपाउंड आएगा वो अल्फा पायरेनोज होगा. अल्फा इसलिए क्योंकि OH की रिलेटिव पोजीशन और पायरेनोज इसलिए क्योंकि ये 6 मेंबर रिंग है. This is important. Okay, that was question number 4. Now let's move on to question number 5. Which of the following bases is not present in DNA? A. Quinoline, B. Adenine, C. Cytosine, D. Thymine. Let's see the solution to this question. We know that bases present in DNA includes adenine, guanine, cytosine and thymine, and in that of RNA, adenine, guanine, cytosine and uracil. So we observed that three of them are given in the options adenine, thymine and cytosine. So option A would be correct answer, as quinoline is not present in DNA. It's very important to remember those bases for both DNA and RNA. So the correct answer is quinoline. Yeah, so this was a fairly easy question if you remember the bases present in DNA and RNA. So that was question number 5. Now we come to question number 6. The correct statement or statements about the following sugars X and Y is or are. So basically हमें दो sugars दी हुई हैं X और Y में और कुछ options दिए हुए हैं उन sugars के बारे में in terms of their reducing nature or non-reducing nature, और हमें सही option पता करना है और ये multiple choice question है which is very important. So we cannot miss out on any option. Let's see the solution to this question. हमारे पास यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स गिवन है एक्स और वाई, और हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं जो स्ट्रक्चर एक्स है वो एसिटल है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें एसिटल फॉर्मेशन हुई है, यानी OH जो कार्बन नंबर 5 पे था उसने कार्बन नंबर 1 पे जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है उस पर अटैक किया है. तो हमारे पास जो OH ग्रुप था कार्बन नंबर 5 पे और जो एल्डिहाइडिक ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे है उन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई है, तो उससे हमारे पास एसिटल फॉर्म हुआ है. तो जो X है वो एसिटल है और इसके पास कोई भी फ्री हेमी एसिटल ग्रुप नहीं है. तो मतलब जो फ्री हेमी एसिटल ग्रुप है वो एब्सेंट है. तो जो ये होगी ये क्या होगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ओके. और जो स्ट्रक्चर नंबर Y है इसके पास फ्री एसिटल ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो इसमें स्ट्रक्चर नंबर ये है सेकंड स्ट्रक्चर Y, इसमें कार्बन नंबर अगर हम नंबरिंग करें तो हमारे पास जो कार्बन नंबर 1 है उस पर फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप जिसने रिएक्शन किया है, तो ये वाला बॉन्डेड नहीं है, मतलब इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ इस वाले ऑक्सीजन ने, तो ये फ्री है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर है. मोर ओवर जो इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है एक्स में, ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है. स्ट्रक्चर वाई में रिड्यूसिंग शुगर क्यों है एग्जैक्टली? Because it is bonded to the adjacent carbons, right? It is bonded, but it is bonded from fourth carbon atom. First carbon is free. The carbon which was originally carbonyl in the open chain is still free. It has not bonded in the compound given Y. Okay. So it is a reducing sugar. क्योंकि हमें पता है कि जब हम सुक्रोज और माल्टोज को जब भी हम इसे नॉन रिड्यूसिंग बोलते हैं तो उसमें जो सुक्रोज और माल्टोज में फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है वो बॉन्डेड होता है. तो जो ये है इसमें बीटा लिंकेज है सेकंड स्ट्रक्चर में. बीटा लिंकेज क्यों? क्योंकि जो OH लेफ्ट पोजीशन पर था पहली रिंग के रिलेटिव उसने पार्टिसिपेट किया है इसमें, तो ये बीटा लिंकेज है. तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं अगर हम ऑप्शन से चेक करें, फर्स्ट ऑप्शन X इज रिड्यूसिंग एंड Y इज नॉन रिड्यूसिंग, तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि X नॉन रिड्यूसिंग है और Y रिड्यूसिंग है, तो ऑप्शन नंबर B सही हो गया. और हम ऑप्शन नंबर C देखें तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन X एंड Y आर अल्फा एंड बीटा रिलेटिवली. तो अगर इसमें से ऑप्शन नंबर D अपने आप एलिमिनेट हो गया क्योंकि ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, तो हमारे पास जो ऑप्शंस होंगे वो जो सॉल्यूशन में आएंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर B एंड ऑप्शन नंबर C. ओके. सो बेसिकली हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, बट अगर हमें पता है कि हमें रिड्यूसिंग शुगर में क्या फीचर्स होते हैं और लिंकेज किस टाइप का लिंकेज अल्फा होता है, किस टाइप का लिंकेज बीटा होता है, तो देन दिस क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल फॉर अस, राइट? सो या दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6.
Moving on to question number 7. The total number of basic groups in the following form of lysine is. अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो गिवन स्ट्रक्चर है उसमें जो CH2 है हमें पता है कि वो न्यूट्रल होते हैं, उनकी बॉन्डिंग सिंपली sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं होता, ये ना ही लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं और ना ही एक्सेप्ट कर सकते हैं. Right. तो हमारे पास यहाँ पर 3 ओड से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, हमें इसमें डिसाइड करना है कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है. ये क्वेश्चन एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो हमें इसमें नंबर लिखने हैं जो हमारा सोल्यूशन आएगा. तो Okay. अगर हम ऑब्जर्व करें जो NH3+ है, जब ये NH2 लोन पेयर था तब ये बेसिक था, बट जैसे ही इसने H+ का एडिशन किया और हमारे पास NH3+ आया तो ये एसिडिक हो गया. तो ये वाला ग्रुप नहीं होगा बेसिक ग्रुप्स में. अगर NH2 लोन पेयर देखें, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, NH2 लोन पेयर एक बेसिक ग्रुप होता है और CO नेगेटिव जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड था वो एक एसिडिक ग्रुप था. जब हमने उसका कॉन्जुगेट बेस बनाया तो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन आया, कार्बोक्सिलेट आयन जो कि एक बेसिक ग्रुप होता है. तो हमारे पास इस स्ट्रक्चर में एक तो कार्बोक्सिलेट आयन और एक हमारे पास अमीन ग्रुप, ये 2 बेसिक हैं. तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो आएगा 2 बेसिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट. ओके, सो बेसिकली इसमें हम ल्यूइस कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि बेस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनर एंड अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, राइट. सो जो भी ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है डोनेट करने के लिए, सो दे विल बी बेसिक इन नेचर, राइट. ओके, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7. Now we come to question number 8. A decapeptide, molecular weight 796, on complete hydrolysis gives glycine, which has molecular weight 75, alanine and phenylalanine. Glycine contributes 47% of the total weight of the hydrolyzed product. The number of glycine units present in the decapeptide is. So, let's see the solution to this question. It's an integer type question, obviously. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कंसेप्ट पेप्टाइड लिंकेज का पता होना काफ़ी ज़रूरी है. तो हमारे पास यहाँ पर एक डेकापेप्टाइड है. जो डेकापेप्टाइड है उसमें टोटल पेप्टाइड लिंकेज कितनी होंगी. अगर हमने पढ़ा था कि अगर n पेप्टाइड मतलब n नंबर ऑफ कार्बन वाला पेप्टाइड है तो उसमें जो पेप्टाइड लिंकेज होती है वो n-1 होती है, n-1 पेप्टाइड लिंकेज. तो हमारे पास यहाँ पर डेकापेप्टाइड है, यानी 10 अमीनो एसिड्स को कंबाइन करके हमारे पास जो डेकापेप्टाइड अवेलेबल है उसमें 9 पेप्टाइड लिंकेज होंगी. 9 पेप्टाइड लिंकेज मतलब जब हमने इन्हें बनाया होगा तो हमारे पास 9 वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेंस हुए होंगे, मतलब 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमूव हुए होंगे. तो हमारे पास गिवन है कि जो डेकापेप्टाइड है उसका मॉलिक्यूलर वेट 796 है और 9 मोल्स ऑफ वाटर ऑलरेडी रिमूव्ड हैं. तो अगर हम इनका वेट इसमें ऐड करें 9 इंटू 18 तो हमारे पास आ जाएगा 18 होता है एक वाटर मॉलिक्यूल का मास. तो 18 इंटू 9 देखेंगे तो हमारे पास 162 आ जाएगा. तो अगर हम देखें कि अगर हम इसे हाइड्रोलाइज करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं कि ये ग्लाइसिन बना रहा है, फिनाइल एलानिन बना रहा है या एलानिन, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है. तो हमारे पास अगर हम देखें हाइड्रोलिसिस के बाद जो टोटल मोलिकुलर वेट होगा हमारे पास, टोटल मोलिकुलर वेट वो होगा 796 प्लस 18 इंटू 9 यानी 162 जो कि 958 होगा. हमारे पास इतना अवेलेबल होगा और हमें गिवन है कि जो 47% है वो ग्लाइसिन कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो मतलब 47% इस टोटल वेट का ग्लाइसिन कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो मतलब 47/100 इंटू 958 इतना वेट होगा ग्लाइसिन, वेट ऑफ ग्लाइसिन इन डेकापेप्टाइड. तो अगर हम इसे सोल्व करें तो हमारे पास आता है 450 और हमें गिवन है क्वेश्चन में कि जो ग्लाइसिन का मोलिकुलर वेट है 75 होता है, राइट. तो अगर हम इस ऊपर वाले को जो हमें गिवन है ग्लाइसिन का मोलिकुलर वेट 75 इसका यूज करें तो अगर हम टोटल वेट ऑफ ग्लाइसिन 450 है तो टोटल नंबर ऑफ ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होंगे वो क्या होगा. टोटल वेट को अगर हम मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लाइसिन से डिवाइड कर दें जिसे सॉल्व करने पर हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो 6 आएगा. तो मतलब जो गिवन इंटीजर टाइप क्वेश्चन है इसका जो सॉल्यूशन होगा, फाइनल सॉल्यूशन, वो होगा 6, यानी 6 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इस डेकापेप्टाइड में. ओके, तो एक्चुअली इसमें
बायोमोलिक्यूल्स के कॉन्सेप्ट्स का ज़्यादा यूज़ नहीं था. दिस वाज मोर ऑफ अ मैथमेटिकल काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. तो एग्जैक्टली हमें देखकर घबराना नहीं चाहिए क्वेश्चन में कि ग्लाइसिन, एलिनिन एंड यू नो वेरी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स, पेप्टाइड लिंकेज. सो या मैथमेटिक्स ही इन्वॉल्व था बेसिकली इस जेईई क्वेश्चन में में. जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है. Simple mathematics, that too. Yeah, right. So that was question number 8. Let's come to question number 9 now. When the following aldohexose exists in its D configuration, the total number of stereoisomers in its pyranose form is. तो हमें एल्डोहेक्सोस का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और हमें पूछा है कि जब ये अपने डी कॉन्फ़िगरेशन में होता है तो इसके टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे. Right. तो इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री का यूज हो रहा है. तो एवरीथिंग, all these concepts should be combined together. We should be thorough with all the concepts to be able to solve the question, right? So yeah, let's see the solution for this question. हमें इस सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो पायरेनोस फॉर्म में हमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल बताने हैं. तो सबसे पहले हम जो हमें गिवन एल्डोहेक्सोस है इसकी हम पायरेनोस फॉर्म बनाएंगे. तो पायरेनोस फॉर्म बनाते वक्त हमारे पास आएगा फर्स्ट पोजीशन पर जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो रिएक्ट कर चुका है तो हमारे पास OH आएगा और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा. इधर भी OH प्रेजेंट होगा. वो हमें नहीं पता कि OH यहाँ पर होगा या वहाँ होगा, कहीं भी हो सकता है क्योंकि हमें यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया ओपन चेन में कि OH की रिलेटिव पोजीशन क्या होगी. तो हम कहीं भी दे सकते हैं OH की रिलेटिव पोजीशन. तो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें हमारे पास कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6. तो हम इसमें इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. सॉरी, यहाँ पर हमें कार्बन नंबर 2 पे OH नहीं गिवन तो ये एक H ही है. तो इसे H लगाएंगे तो हमारे पास जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन एटम्स प्रेजेंट है वो है कार्बन नंबर 1. कार्बन नंबर 2 नहीं होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम आ चुके हैं. तो कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5. Right. Is carbon number 5 an optically active? No. Why not? Because in carbon number 5, carbon number 6 is attached to which one hydrogen and one OH is attached. Similarly, for carbon number 4 attached to carbon number 5, we have carbon is attached which has one H and one OH. So both 5 and 6 will have same configuration, so it will not be an optically active. Oh, okay. Right. So we have just carbon number 1, carbon number 3 and carbon number 4 optically active carbons. और हमें पता है कि जब भी हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं तो एक के अबाउट अगर हम कन्फिग्रेशन को बदलें, मतलब जो फर्स्ट है उसके अबाउट हम 2 कन्फर्मर्स बना सकते हैं या स्टीरियो आइसोमर्स बना सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन के अबाउट. तो कार्बन नंबर 1 के अबाउट 2 पॉसिबल होंगे, कार्बन नंबर 3 के अबाउट 2 पॉसिबल होंगे, कार्बन नंबर 4 के अबाउट 2 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल होंगे. तो यहाँ पर ओवरऑल जितने अगर n स्टीरियो सेंटर्स हैं किसी भी कंपाउंड में तो n स्टीरियो सेंटर्स के कोरस्पॉन्डिंग जितने भी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो होते हैं 2 to the power n. तो यहाँ पर हमारे पास 3 स्टीरियो सेंटर्स हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 2 to the power 3 that is 8. तो 3 स्टीरियो सेंटर्स प्रेजेंट होने की वजह से हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स होंगे 8. Okay. So our solution will be 8. Okay. So in this question, we saw the use of the concept of stereochemistry as well. Sorry. Yeah. So that was question number 8.